لیکن سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا کہنا ہے کہ زیادہ تر اسلامی ممالک کو کرپشن اور جنسی جرائم جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ بدقسمتی سے بدعنوان قیادت کرپشن کو قابل قبول بنا دیتی ہے۔ عالمی اسکالر سے مکالمے میں گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ معاشرے سے کرپشن کو ناقابل قبول بنانا ہوگا، زیادتی کے واقعات کے خلاف بھی لڑنا ہوگا۔ Muslim world, that there are two sorts of crimes in the society. One is corruption and the other is sex crime. We find that sex crime has risen very sharply in our society, which means rape as well as child abuse. And unfortunately only 1% of sex crime is reported. So which means law enforcement can basically just deal with 1%. The other 99%, I feel the society has to fight it. Same with corruption. Found problems that have to do with appetite. The shahwa is a fundamental thing in the human being, that God has put appetites in us. But when that desire becomes inordinate, when it becomes something that is greedy, and then we begin to harm the society, something's gone seriously wrong. So this is a deep problem in many, many places, including the United States. There's no country that you're addressing this. But one of the things that people have to understand about this is that the selfishness of that individual is, in the end, harms him. وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ حکومت نے نواز شریف کی واپسی کے لیے اٹارنی جنرل کو ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف نے بھائی کی واپسی کے لیے حلف نامہ دیا تھا، عدالت کو جعلی حلف نامے پر شہباز شریف کو طلب کرنا چاہیے۔ میڈیا سے گفتگو میں فواد چودھری نے رواں سال کو پاکستان کے استحکام کا سال قرار دیا، کہا کہ 30 سال کے اقدامات کو 3 سال میں بہتر کرنا ممکن نہیں۔ اسٹیٹ بینک کی آزادی پاکستان کے مفاد میں ہے، اتحادی ہمارے ساتھ ہیں۔ منی بجٹ پر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی سندھ کے عوام سے کس چیز کا بدلہ لے رہی ہے۔ سندھ حکومت صوبے میں صحت کارڈ کا آغاز کرے۔ جی ہم اٹارنی جنرل صاحب کو کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب یا تو نواز شریف کو واپس لے کے آئیں، اور اگر نہیں لے کے آتے تو جعلی حلف نامہ دینے کے اوپر شہباز شریف صاحب کے خلاف کارروائی کی جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک 30 سال کے جو اقدامات انہوں نے کیے اس کو آپ کہیں کہ 3 سالوں میں آپ ہر چیز جنت بنا دیں۔ ہم انڈیپینڈنٹ اداروں پہ بلیو کرتے ہیں، اور اسٹیٹ بینک کی آزادی جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں، اور 30% رعایت جو کہ آٹے گھی اور دال پہ ہے وہ بھی سندھ کے شہریوں کو صرف میسر نہیں ہوگی، باقی پورے پاکستان میں میسر ہوگی۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مراد علی شاہ صاحب جو ہیں یا پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ کے لوگوں سے کس چیز کا بدلہ لینا چاہ رہی ہے۔ اور پی پی ترجمان شاذم مری کا فواد چودھری کے بیان پر رد عمل سامنے آیا، کہا کہ سندھ واحد صوبہ ہے جہاں کینسر، دل، گردوں اور جگر کی بیماریوں کا مفت علاج ہوتا ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا سمیت ملک بھر کے لوگ مفت علاج کے لیے سندھ آتے ہیں۔ عمران خان سندھ میں NICDV اسپتالوں کو دشمن کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ انہیں صدمہ ہے کہ سندھ میں کینسر کا مفت علاج ہوتا ہے۔ شاذم مری نے بھی کہا کہ عمران خان کے مالی سہولتکاروں نے ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا، عمران خان کو کورونا فنڈ کے 40 ارب روپے کا حساب دیں۔ نواز شریف کے ضامن بننے پر شہباز شریف مشکل میں پھنس گئے۔ حکومت نے شہباز شریف کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں شہباز شریف نے ضمانت دی تھی کہ وہ 4 ہفتوں کے بعد اپنے بھائی کو وطن واپس لائیں گے۔ شہباز شریف اپنی دی ہوئی ضمانت پر قائم نہیں رہے، اس لیے حکومت ان کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرے گی۔ شریف کی وطن واپسی میں تاخیر کیوں؟ ضامن شہباز شریف شکنجے میں آ گئے، سرکار نے کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے غیر ملکی میڈیا سے گفتگو میں کہا عدالت عالیہ کو از خود نوٹس لے کر شہباز شریف کو طلب کرنا چاہیے۔ وفاقی حکومت نے قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کے خلاف عدالتی کارروائی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ نواز شریف کو علاج کی غرض سے لندن بھیجے جانے کے عدالتی فیصلے میں شہباز شریف کی جانب سے ایک بیان حلفی جمع کرایا گیا تھا، جس میں انہوں نے اپنے بھائی کی پاکستان واپس آنے سے متعلق ضمانت دی تھی۔
मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान नज़मा बुखारी ने उस्मान बुज़दार के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए तंज के निश्तर बरसा दिए। कहती हैं, बुज़दार साहब, साल बदल गया लेकिन आपकी हरकतें और बयानात नहीं बदले। आप हस्बे रिवायत साल के पहले दिन भी झूठ बोल रहे हैं। 63% लोगों ने आपकी कारकर्दगी को इंतहाई मायूस कुन करार दिया है। उस्मान बुज़दार को 3.5 साल से मुसलसल नालायकी के तमगे मिल रहे हैं। वोट को इज्जत दो इसी दिन रुस्वा हो गया था जब आपकी रिमोट कंट्रोल हुकूमत बनाने के लिए नून लीग के मैंडेट पर डाका मारा गया था। आप शहबाज शरीफ लग सकते हैं, बन नहीं सकते। पंजाब के अवाम की बदकिस्मती है कि चाबी वाला खिलौना उन पर मुसल्लत कर दिया गया है। पंजाब में सेहत कार्ड के तहत मुफ्त इलाज का आगाज हो गया। फवाद चौधरी कहते हैं कि पूरे लाहौर डिवीजन को कार्ड मिल गया। 45 रोज में पंजाब के तमाम खानदानों को सहूलत मिल जाएगी। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने सेहत सहूलियात के लिए आवाम से नादरा में रजिस्ट्रेशन की अपील कर दी है। एक कार्ड और सेहत की तमाम सहूलियात। पंजाब में आवाम के मुफ्त इलाज का आगाज हो गया। पूरे लाहौर डिवीजन को सेहत कार्ड की सहूलत मिल गई। 45 रोज में पंजाब के तमाम खानदानों को कार्ड मिल जाएगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने खुशखबरी सुना दी। जो सेहत कार्ड है वो वहाँ पे मुकम्मल तौर के ऊपर लॉन्च हो गया है और 10 लाख रुपए तक जो तमाम खानदान है पाकिस्तान में मासवाए सिंध के, उनको अब ये सहूलत है कि वो अपना इलाज किसी भी अस्पताल से वो कर सकते हैं। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने आवाम से नादरा में रजिस्ट्रेशन की अपील कर दी। कहा, कार्ड के हुसूल में सहूलत के लिए नया पाकिस्तान मोबाइल ऐप का इजरा कर दिया है। ये कार्ड उसको मिलेगा जिसके पास आइडेंटिटी कार्ड है। इस सारी सहूलत के लिए हमने एक ऐप बनाया है। इस तरीके से आप ऐप के थ्रू राब्ता कर सकते हैं। सेहत सहूलियात पर आवाम भी मसरूर हैं। कहते हैं, कार्ड की बदौलत तवक्को से कहीं ज्यादा बेहतर इलाज करा सके। सेहत कार्ड के हवाले से मुझे जिस कदर भी सहूलत चाहिए थी ना, उससे ज़्यादा मिली। मैंने इस पे पहले तो मेरा एंजियोग्राफी भी इसी पे हुआ, जितना भी था टेस्ट सारे इसी पे हुए। शहरी कहते हैं, जो सहूलियात पहले ख्वाब थी, सेहत कार्ड ने उसे हकीकत बना दिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि पंजाब में ओमिक्रॉन के मुश्तबा केसेस 117 हैं, जबकि 58 ओमिक्रॉन केसेस की तस्दीक हो चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि ओमिक्रॉन की शरह पंजाब में 1% जबकि लाहौर में 3.8% है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव की शरह ज्यादा होती है। हुकूमत सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। और मुल्क में कोरोना का इफरीत फिर से सर उठाने लगा है। मुस्बत केसेस की शरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी है। 24 घंटे में 594 मरीज सामने आ गए। मजीद 8 अफराद जाने गंवा बैठे। मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 1.30 तक जा पहुंची। साथ में स्मार्ट लॉकडाउन के बाइस डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई। इसराइल में कोरोना की एक और नई किस्म फ्लोरोना सामने आ गई है। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक फ्लोरोना के पहले केस की तशखीस एक इसराइली खातून में हुई है। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। कराची से डॉक्टर फारूक सत्तार और जहांगीर तरीन की मुलाकात। कराची शहर और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं का आइंदा भी मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक हुआ है। डॉक्टर फारूक सत्तार और जहांगीर तरीन की मुलाकात में कराची शहर की जो सियासी सूरत हाल है, इसके अलावा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई है। माविश सुहेल इस मुलाकात के बारे में मजीद आगाह करेंगे। माविश, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की जहांगीर से कराची में अहम मुलाकात की है और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर जो है दोनों फारूक सत्तार और जहांगीर तरीन ने तफसीली बातचीत की है और दोनों रहनुमाओं का आइंदा भी मुशावरती सिलसिला बहाल रखने पर भी इत्तफाक हुआ है। जी बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। और आलमी वबाई बहरान थम न सका। यूरोप और अमेरिका में ओमिक्रॉन केसेस में तेजी से सूरत हाल मजीद खराब होने लगी है। बरतानिया में समाजी दूरी की पाबंदियों को आखिरी हरबा करार दे दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके करक में टेरी मंदिर तामीर नौ के बाद खोल दिया गया। भारत, अमरीका समेत मुख्तलिफ ममालिक से यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए पहुंच गए। यात्रियों ने मेहमान नवाजी पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्हें तवक्को है कि बढ़कर मोहब्बत मिली, भारत से ज्यादा आज़ादी के साथ इबादत अदा की।
करक में टेरी मंदिर तामीर नौ के बाद बहाल, यात्री 1 साल बाद इबादत का मौका मिलने पर निहाल। मजहबी गीत पर झूमते इन यात्रियों का ताल्लुक भारत, अमेरिका समेत मुख्तलिफ ममालिक से है, जो करक के श्री प्रेम हंस जी महाराज टेरी मंदिर पहुँचे तो उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। यात्री हुकूमत और पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी पर खुश दिखाई दिए। फैमिली के साथ न्यू दिल्ली इंडिया से आई हूँ। यहाँ आकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि हम यहाँ आए हैं दादा गुरु महाराज जी की समाधि पर, उनके मंदिर पर। हम बहुत खुश नसीब है कि हमें ये मौका मिला है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो ऐसे आ सके हैं। यात्रियों ने मजहबी रसूमात की अदायगी में हिस्सा लिया। उनके लिए मंदिर में ही खाने पीने और रिहाइश का एहतमाम किया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।